Good morning, everyone. These are my gurus, Dr. Ashok Mondi sir and Dr. P. Shankar sir. So always I'll give my first tributes and respects to both of these masters. Because of them, I am here. Thank you, masters. So today we'll discuss this rubric levels against politics. तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो 69 to 70 लोग जहाँ पे है ना ये प्लेटफॉर्म पे आई थिंक एवरीवन नोज दिस रूब्रिक बट हम जो देखता है ये रूब्रिक में थोड़ा हटके देखना मुझे लगा था क्योंकि मैंने पहले दूसरा और रूब्रिक सोच रहा था लास्ट टाइम एज वी डिस्कस थ्रू ए केस सम खेलकेरा कर्व का एक केस डिस्कस किया था तो वो टाइम पे मैंने दूसरा एक रूब्रिक को लिख के रखा था लेकिन 2 दिन पहले मुझे लगा है कुछ इंसिडेंसेस देखने के बाद माने कि सोशल मीडिया में देखने के बाद मुझे ये लगा था ये रूब्रिक फिट होता है तो मैंने सोचा एक बार ये रूब्रिक डिस्कस करेंगे बोल के तो अभी ये वो फिस्ट का इमेज देखिए दिस इज द इमेज दिस शोज द स्ट्रेंथ यूनिटी इज स्ट्रेंथ सो लाइक एक रेबेल का मतलब हम पहले सोच रहे हैं क्योंकि रेबेल अभी ये इमेज देखिए वट एवर द सिनेरियो इट माइट बी रेबेल माने you are going something against which are written by the government or constitution or by the local bodies तो ये मतलब रेबल का मतलब देखिए वर्ड वेब या मेरियम वेबस्टर some other dictionaries का a person who takes part in an armed rebellion against a constituted authority especially in the hope of improving conditions तो ये नेचुरल मीनिंग ये है कि किसी का दुख को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा नहीं तो जो एटमॉस्फेयर पे ये इतने सालों से जी रहे हैं उससे वो आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए ये सोचता है हमेशा तो ये नॉर्मल रिबेलिज्म इट डजंट मीन ऑलवेज इट इज ए गुड थिंग और ऑलवेज इट इज ए बैड थिंग विल थिंक इट इन ए न्यूट्रल मैनर ये लोग ये क्यों कर रहे हैं इन लोगों का इंटेंट क्या है तो ये समझना हमारा कर्तव्य है मतलब एक बच्चा अपनी माँ के खिलाफ लड़ना एक स्टूडेंट अपने क्लास टीचर के सामने लड़ना ये रेबेल नहीं होता दिस इज फाइटिंग फाइटिंग इज लाइक इट इज फॉर ए मोमेंट इतने लाइक इट डजंट गो बियॉन्ड सम डेज और months or years we may say like a rebellist act like we see like in partition of states some years together people fight for it मैंने बचपन में सुना था ये हमारा स्टेट का वो पार्टीशन डॉक्टर पोटी श्रीरामुलु जी ने 51 days हंगर स्ट्राइक पे था तो उनका वो एक एक्ट इतना रेवोल्यूशन लेके आया कि वो सब लोगों का हक बन गया लाइक इवन इन झारखंड नाउ द लास्ट स्टेट फॉर्म लाइक जम्मू कश्मीर एंड प्रीवियस टू दैट माय ओन स्टेट तेलंगाना सिंस 1969 it was been fought and in 2014 we got the state the agenda it might be different so we will not discuss any political things so the criteria is
the written documents, written government rules and regulations and principles which should be followed without questioning, because they are laid down after several amendments and thought process by masters. So why these people are fighting even after that? Rebel, someone who exhibits great independence in thought and action. माने मेरा कॉलेज लाइफ में ये हुआ था, जब एक स्थिति आया था, वो स्थिति में क्या था कि कॉलेज में लेक्चरर्स नहीं था, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था फाइनल ईयर में. तो वो टाइम पे आई वाज इन फाइनल ईयर, सो आई वाज माय कॉलेज final year student and I'm my class representative too. So that day I have thought, why shouldn't I discuss these things with the owner of the college? So it was a one man's thing that went on to become a mass revolution. Whole college stood behind me. So it might have changed the lives of further batches. So उस दिन एक छोटा सा चिंगारी पूरा जंगल को आग लगा दिया है, ये मैं बोल सकता हूँ. So it might have brought some good changes in the future, it might not have. So these things starts from one person and that flourishes with the mass. So this is the meaning of rebel. Even in a recent movie, Kamal Hassan movie, there was one line by some actor, I don't know his name. One person's revolution is others terrorism. Mane, if we go with the true meaning of that, it was a good intention by me to discuss the things with the owner, but he might have thought like he's making the other students peace of mind or other students integrity or harmony which was continued still that time, but was disturbed or polluted by me. So it becomes a terrorist act to him. I'm not keeping this example on any other, because someone might get hurt through the example. So I am keeping it on myself. So this is the against the meaning which we see playing in opposition to, in contrast, in disagreement with. माने कि we are not agreeing the things, a gentleman's pact, a gentleman's deal. Like we see Paris like a peace pact which was kept in the First World War, so which was broken in the Second World War because of one person's revolution, anarchism, like we can say that. So next, politics. इसका मतलब देखिए, हम बहुत सारे एंकल स्प्रेन्स या नी जॉइंट स्प्रेन्स, एल्बो स्प्रेन्स, बहुत सारे जगह पे स्प्रेन होता है और वो कंडीशन पे विल सी पेशेंट मरीज ने एक पट्टी बांध के आ जाता है, एक क्रेप बैंडेज बांध के आ जाता है. दिस इज poultice, which is a medicated thing, a medical dressing consisting of a soft heated mass of meal or clay. Even in old dictionaries, they use clay for the treatment that is spread for unbroken or continuity of where the continuity of the skin is maintained in that injuries, where clay is used for the treatment in poultice that is spread on cloth and applied to skin to treat inflamed conditions. This is the normal meaning. Poultice, dressed by covering with a therapeutic substance, the same. मैं एक मूवी का सीन दिखा दे. Have everyone seen that 1 minute bit? Yes. Okay. So आपको कुछ समझ में आया क्या ये वीडियो से, ये रूब्रिक का मतलब, या कुछ और समझ में आया क्या? No, please switch on your mics because we'll discuss this rubric.
वो पिक्चर का सीन में वो आदमी सब लोगों को पानी पिला रहा है और उसी को उन लोगों ने मार डाला। तो जो सबको सूदिंग इफेक्ट दे रहा था यानी पानी पिला के उनका दुख थोड़ा कम कर रहा था, उसी को उन लोगों ने मार डाला। क्यों मार डाला? ये क्यों का पता चलना ही ये रूब्रिक का मकसद है। तो मतलब वो सब वो अगेंस्ट काम कर रहा था उनके, इसलिए। ओके, एक्चुअली ये मूवी में स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, एक लेडी भाग जाती है अपना घर से। उसका रीजन कुछ और होगा, वी डोंट वांट टू डील इन दैट थिंग्स। तो these all people come behind her, they will take her, the lady, to their home. At that time these heroes troop gets against to them, but unfortunately lastly they will leave that woman to them only. Something as such happens in that. ये बंदा जो इनको मार डाला है ना, उनका एक अलग मकसद है। उनका मकसद क्या है, जो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उससे ये बंदा अगेंस्ट बिहेव कर रहा। ही इज हेल्पिंग हिज ओन पीपल, बट दैट पर्सन हु इज मेकिंग, जो उनको पानी पिला पिला रहे, वो मरीज को या वो घायल हुआ बंदा को पानी पिला रहे, वो इन लोगों का आदमी नहीं, वो पुलिस लोगों का आदमी है। फिर भी वो बंदा को इन्हें मार डाला है। सो ये रूब्रिक का मीनिंग यहीं पे मिलता है। ही इज फॉलोइंग हिज ओन इंटेंट, हिज ओन थॉट प्रोसेस। Even he is not observing the things which he was doing. Like, he is helping our own person, own group member, but he went to kill him without any notice, without any like approachment towards him. Like, went and killed him. That's it. तो ये क्या है? दिस इज रेबेलिंग अगेंस्ट ऑल दिस। जो अपने को इलाज करने के लिए आ रहा, अपने घायल हुए सैनिकों को पानी पिलाने के लिए आया, दिस इज लाइक morbid state, we can say in clear words, morbid state where you are fighting against the medical system। ये लोग ऐसा क्यों कर रहा? If we see, many people behave like this, but when they behave in this pattern, like in a diseased condition, that is we should see. Like, I'll give an example in this rubric, Bryannia and Naxwamika. I'll differentiate the two remedies. So मैंने ये रूब्रिक ब्रायनिया से ही सीखा था। इस्तेमाल तो मैंने स्पाइजिलिया में किया था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट कंटेंट। सो ब्रायनिया में क्या था, एक सीनियर ने मुझे सिखा रहा था। तो उनका मकसद दिन भर डेल्यूजन इज परस्यूइंग बिजनेस, डेल्यूजन लाइक ऑलवेज इन इज ऑक्यूपाइड इन बिजनेस। ब्रायनिया माने बिजनेस, हमको कॉलेज से ही पढ़ाते हैं ये लाइन। तो व्हाट इज बिजनेस फॉर हिम, व्हाई ही इज इन्वॉल्व दैट मच इन दिस बिजनेस? सो ब्रायनिया का तकलीफ ये है कि if I doesn't go to my work or my business or where I get profit, if I don't go there, so what happens? बीवी बोलता है आप मत जाइए, आपको स्प्रेन हुआ है, अब दिन भर काम करना पड़ता है वहां पे, एक दिन आराम करिए। तो ये बोलता है हट, तो कौन है मुझे बोलने वाला? भाई दिस मच इरिटेटेड क्यों हुआ ये बंदा? बिजनेस अंदर चल रहा था, इसलिए अडेप्टेशन और रिएक्शन में आप देखिए वायलेंट में आ जाता है ब्रायनियन। उनको ना बोलना पसंद नहीं, उनका जो इंटेंट को ना बोलना, किसी भी फैमिली पर्सन उनको ना नहीं बोलने का, क्योंकि उनका इंटेंट क्या है, बिजनेस है, और उसके पीछे क्या है, फियर ऑफ बीइंग स्टार्व, फियर ऑफ स्टारवेशन। उनको दिन भर यही रहता, मैं 11 घंटा काम करता हूं, अगर मुझे 10,000 मिले तो ठीक है,
if I don't work, I'll not get that sufficient amount. But if something drastic things comes, what happens to my family? ये नहीं आता उनको माइंड में. काम करना पैसे कमाना, काम करना पैसे कमाना. So this is Brahinia's intent. So in this manner, he'll not deal in his proper, smooth, affectionate tone with the family. So he'll become rebellious kind of personality. हम पूछ सकता है बीवी से, ये कैसा रहता जब इनको बीमार आया तो, नहीं तो इनको जब भी तकलीफ आया तो ये कैसा बिहेव करता. रफ सर, रफ, बिल्कुल रफ. मैं जो बात बोलने के लिए चाहता हूं, मतलब प्यार से भी बताओ उनको, बोलने दो, वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं रहता. मतलब चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहता, इरिटेशन में रहता. उनका स्वभाव शांति से बोलने का है ही नहीं. तो मैं भी छोड़ देता हूं सर, उनके हाल पे उनको ही छोड़ देता हूं. तो ब्रायनिया को उनके हाल पे उनको छोड़ दिया तो ये रेबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स आता ही नहीं. लेकिन बीवी कैसा छोड़ सकता है? वो बोलने में छोड़ता है, लेकिन वो काम में बिल्कुल नहीं छोड़ेगी. उनको बार बार कॉल करेगी, कैसा है, आप थोड़ा शांत रखिए. फिर इनको गुस्सा आ जाता है, मुंह पर गाली दे देता है. शांति से प्यार से बोलने का नहीं रहता इनको. अभी नक्स्वामी का इंटेंट देखिए, नक्स्वामी का कैसा रहता. उनको एम्बिशन के साथ रहता. उनको एम्बिशन पाना ही पाना, दिन भर रात भर, सालों महीनों दिन, कुछ भी उनको कैलेंडर का परवाह ही नहीं रहता. खुद का शेप क्या रहता वो भी परवाह नहीं रहता. वो एम्बिशन में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो एम्बिशन में जब बंदा रहता है, खाना पीना ये सब छोड़ देता है, फिजिकल अपीयरेंस में भी छोड़ देता है, उतना एम्बिशियस रह जाता है. लेकिन एक बार एम्बिशन अचीव करने के बाद इनको क्या मिलता है, नक्स्वामिका को? अप्रिशिएशन. सब लोगों को अब एक रूब्रिक भी रहता उसके साथ, ऑस्टेंटेशन बोल के एक रूब्रिक रहता, बोस्टिंग विथ ऑस्टेंटेशन, कुछ ऐसा. तो उनको वो चाहिए बोले तो वो एम्बिशन में रहना है. अगर सो गए तो, बीवी बोला है सो गया तो क्या होता? मेरा एम्बिशन दिसंबर 31 को रीच होने का नहीं होता. इट विल बी पोस्टपोन्ड. He is so ardent kind of personality. If you see the rubric ardent in Ken's Repertory, in first repertory which he has written, we have single Nakswamika. ऐसा. So, like, these people are possessing with some intent. So, उससे वो ट्रैवल करता ही करता, वहां पे वो दिखता है. वो इंटेंट दिखने का पार्ट हमको रेबल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स के पीछे रहता. ये पकड़ना है केस में, बिकॉज मॉर्बिडली कर रहा बोले तो कुछ ना कुछ इंटेंट रहता है. इफ यू सी एनी रेमेडी इन दैट रूब्रिक विल हैव सम इंटेंट. सो दैट इज व्हाट वी शुड सी. इफ ही डजंट सी, विल मिस दिस रूब्रिक. लाइक ये एक्सप्लेनेशन करने से पहले मेरा क्लिनिक में मेरे जूनियर पूछ रहे थे, सर एडमोनिशन अग्रेवेशन से ये रूब्रिक कैसा डिफरेंशिएट कर सकता है? किसी ने बोलने के लिए तैयार है क्या? प्लीज कम फॉरवर्ड. एनीवन इज वेलकम. इवन इफ यू हैव लिटिल आइडिया ऑफ दैट रूब्रिक एडमोनिशन अग्रेवेशन, प्लीज. हेलो सर. एडमोनिशन मतलब उसको कोई सलाह नहीं चाहिए होती, अपनी मर्जी से सब करना होता है, और वो काम करते समय कोई सलाह देता है तो उसको पसंद नहीं आता है. जैसे किचन में बहू कुछ काम कर रही है, कोई डिश अपने हिसाब से बना रही हो, और सासू माँ कुछ उसको में एडमोनिशन देती है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसको गुस्सा आ जाता है. ओके, ओके. तो इसका मतलब क्या है? एडमोनिशन में एडमोनिशन आपको समझ में आ रहा? मॉनिशन बोले तो मॉनिटर करना. बचपन में क्लासेस जब भी सर नहीं रहते,
या कुछ टीचर को कुछ बुखार या कुछ हेडेक रहे तो दे विल नॉट से द क्लास मॉनिटर को बुलाते हैं। मॉनिटर क्या करता है? क्लास को मॉनिटर करता है। सो मॉनिशन का मतलब क्या है? ओवरलुक। बार बार देखना नहीं पड़ता, वो वहां पे बैठ के देख सकता है क्या चल रहा है। इट इज एन ओवरव्यू, ऊपर से, हाईएस्ट पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा? मरहम पट्टी कब लगाते हैं? when he is deeply injured, when he is like walking in a like a staggered person, मतलब हिलके हिलके का चल रहा है। तो वो टाइम पे क्या हो रहा? उनका जॉइंट का बहुत डीप इंजुरी हुआ। वो टाइम पे पॉल्टिस बनना जरूरी है, वो टाइम पे क्रेप बैंडेज बनना जरूरी है, वो टाइम पे उनको जितना भी तकलीफ रहने दीजिए। हम लोकल मैं एक टाउन पर्सन हूँ, वहां पे मुझे बचपन में बहुत सारे ये 7 से ये क्या बोलते स्प्रेन्स हो रहा था, एंकल जॉइंट का, नी जॉइंट का, एल्बो का, नहीं तो wrist का, कहीं पे भी हो रहा था। तो वहां पे क्या रहता, ऑर्थोपेडिक के पास उतना बीट रहता, और वो टाइम पे ऑर्थोपेडिक खाली ट्यूसडे पे आता था मेरा जगह पे। तो लोकल पर्सन के पास मेरे पिताजी लेके जाते थे। तो वो क्या करते, मैं जितना भी चीखे मारने दीजिए, वो कस के पकड़ के, दोनों लड़का रहते थे उनके पास, मेरा दोनों हाथों को पकड़ के वो पट्टी बांध लेता है। तो ये क्या होता, इनको कस के पकड़ना पड़ता पॉलिटिक्स बांधने के बाद से, आराम से स्मूथ से नहीं बांधना पड़ता, ये दबा के करना पड़ता। तो दबा के करे तो क्या होता, ही इज बीन रेस्ट्रिक्टेड देयर। इनका इंटेंट क्या है और इन्हें क्या कर रहा है वहां पे? तो these people have some intent, so we need to understand that things. Okay, so this is my presentation of rebels against politics. If anyone has any doubts, like we can discuss. सर नक्स भूमिका का थोड़ा बताइए। नेक्स्ट भूमिका का कैसा रहता है? एक साइंटिस्ट को समझ लेते हैं, सिंपल से उनको क्या चाहिए? उनका एक प्रोडक्ट को आविष्कार करने का मन रहता है। तो वो टाइम पे उनका सिंपल गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे, उससे बाहर आने के लिए मन कभी नहीं रहता। लेकिन बीवी बार बार कॉल करके खाना टाइम पे खा लीजिए, वो बॉक्स पकड़ के आ जाती है उनका क्या बोलते हैं ऑफिस रूम पे, नहीं तो उनका वर्क स्पेस पे। तो उनको कैसा रहता? एक बार बोल देता है साफ से, दूसरी बार कैसा बोलता है? साफ से, शांति से नहीं बोल सकता है ये बंदा। आपको समझ में आ रहा है? सकता है। हाँ सर, समझ में आया। हाँ वैसा। थैंक यू सर। You can't expect a soft response from him. That is Naxwamika. That is these people who are in this rubric. एक एक का एक एक मकसद रहता है। ओके, पीजेली आपने बोला था ना? स्पाइसिलिया। ओके, स्पाइसिलिया क्या था? एक लेडी था, वो उनका उम्र 50 प्लस भी होगा, मुझे ये केस बहुत पुराने का। तो वो टाइम पे क्या हुआ था, उनका वो राइट नी जॉइंट का प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। उनका बेटा बोल रहा था, माँ मैं ये सर्जरी करवा दूंगा आपको, लेकिन इनका कहना है कि नहीं जाना चाहिए। दिस वॉज द रिएक्शन। सो ये क्यों बोली है ऐसा, ये समझ में नहीं आया था पहले मुझे, क्योंकि बेटा उनका इंटेंट को समझा ही नहीं, ये ऐसा क्यों बोली। स्पाइसिलिया का क्या रहता है ना सर, एक मैंने ये डॉक्टर मनोज जायसवाल सर से ही सीखा था। ये सीखने के बाद मैंने ये प्रिस्क्राइब किया था। स्पाइसिलिया का ये रहता है, उनको जब चाहिए वो केयर वो टाइम में नहीं मिलता था, ये रिटर्न ऑफ अफेक्शन वो टाइम पे नहीं मिल रहा था। मतलब
जब दिस लेडी वाज इन 30s और मिड्स ऑफ like 40s, late 20s, these three age groups. At that time, like husband was very busy in his activities, and ये हर बंदा को उनकी तरफ से काम करने के लिए सोचता था। क्यों? इनको ये डर रहता है कि फियर ऑफ पिंस, कहीं कुछ ये लोग मेरे खिलाफ ना बोले। सो मॉर्निंग से नाइट तक ये काम करती रहती है एक मिशन की तरह। तो वो टाइम पे ये लोग इनको ये प्यार नहीं दिया था, माने कि इनका सोचना ऐसा है, क्योंकि वो टाइम पे ये लोग बच्चा लोग है और ये ठीक से काम कर रही है, वो वहां पे कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो ये लोग आके उनको क्यों देखता है? तो वो हाल पे ये कॉन्स्टेंटली थी। तो ये टाइम पे ये लोग आके, मैं क्योंकि अभी वो विडो बन गई है वेरी एट द टाइम वेरी रिसेंटली, उनका हस्बैंड भी गुजर गया था। आई डोंट नो अबाउट दिस कंडीशन। सो वो टाइम पे गुजर गया था। ये लोग उनको जब से ये सिंगल लेडी बन गई, वो टाइम से इनके हेल्थ पे स्टेटस पे ये बच्चा लोग माने 2 बेटियां है, 3 बेटियां है, 1 बेटा है, वो लोग ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन ये टाइम पे ये रेबेलिस्ट बन गई उन लोगों के खिलाफ। दैट वाज द स्टेट सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। सर ये रूब्रिक बच्चों में कैसे अप्लाई करेंगे? सर लाइक कोई भी, जैसे एक 6 मंथ का बच्चा हो तो भी वो एक्सप्रेशन रहेगा, या फिर जो बात कर सकता है लाइक अंडर टीन्स? सिंपल, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक 6 मंथ्स आप भी बोला है, 6 मंथ्स का बच्चा को क्या चाहिए? एक माँ की प्यार चाहिए, सिंपल ना? एक अटेंशन चाहिए, माँ हर बार उनको देखना है। तो इनको सिंपल एक फीवर आया है वो टाइम पे, विल डिस्कस एक सिंपल कैमोमिला का ही सोच लेंगे, इसमें कैसा रिएक्ट कर लेंगे। कैमोमिला कैसा रहता है? वी एवरीवन नोज, वेरी arrogant in his nature, in his reactions, even in books we study uncivilized answering बोल के हम पढ़ा है ये। तो आप समझ लीजिए ये क्यों कर रहा है, अनसिविलाइज्ड क्यों बना है ये बंदा। जो भी बंदा डायरेक्टली अनसिविलाइज्ड क्यों बनता है, कुछ ना कुछ कारण रहता ही रहता है। तो कैमोमिला का क्या है ना, उनका वो बीमारी उनको बहुत परेशानी करता है, अंदर बहुत तकलीफ होता है उनको। तो वो तकलीफ में माँ ऐसा प्यार से सहलाने के लिए करने के लिए वे सामने आए तो ऐसा ही ढकल देते हैं। दिस वॉज देयर रिएक्शन। नॉट एवरी टाइम वी सी इन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक्शन कैसा करता है? बच्चा का उम्र कितना है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का रिएक्शन ऐसा देख सकता है, नहीं तो ऐसा देख सकता है। दिस इज वेरी टफ एंड वेरी रिजिड इन एक्शंस। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। थैंक यू सर। एडमोनिशन इंक्रीज का 1-2 एग्जांपल हो। एडमोनिशन, ओके, एडमोनिशन अग्रेवेशन माने वहां पे कुछ टच नहीं रहता, वहां पे फिजिकली कुछ होने वाला चीज नहीं रहता। आप समझ लीजिए, यू आर सीइंग एक लास्ट बेंच स्टूडेंट बात कर रहा है, लाइक हे यू आर टॉकिंग, दिस इज देयर वर्जन। वंस इफ दे से दैट वाज ओवर। बट रेबल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स में यू सी फिजिकल थिंग्स, फिजिकली गोइंग अगेंस्ट देम। एडमोनिशन अग्रेवेशन एक थॉट प्रोसेस का रहता, ये बार बार क्यों पूछ रहा है रे, ये ऐसा क्यों पूछ रहा मुझे, क्यों मेरा ही नाम ले रहे, क्यों ऐसा। तो दैट वाज वेरी सिंपल वन, मॉनिटर में होता है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, बच्चा को हम बुलाएंगे, क्या एक रिजल्ट आया, आज ही रिजल्ट आया, लाइक why you didn't get the marks,
When was this happening? Only when it was on the results day. ये नहीं है कि बीच में नहीं पूछता है, ऐसा नहीं रहता. सिंपल टेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन दिस वॉज वेरी सुपरफिशियल वन. कस के पकड़ के पूछना ऐसा नहीं होता. वो टाइम पे अगर वक्त नहीं मिले तो पिताजी सो जाएगा, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके, वी कैन ओवरलुक, ओवरव्यू एंड ओवरलुक दोनों हो सकता है एडमोनिशन में. लेकिन रेबल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? इतना सूजन हुआ है जॉइंट पे, यू नीड टू कीप दैट क्रेप बैंडेज. If not, you need to take house arrest for home bed rest for 3 to 4 days. यहाँ पे फिजिकली एक्शन भी हो रहा, ये बोल के जाता है एडमोनिशन में. मतलब ठीक है, आज से अच्छा पढ़ो, ओके, नहीं तो कुछ ट्यूशन लगवा दो. यही होता है. ये ट्यूशन जा रहा है या ट्यूशन में कितने घंटे पढ़ा रहे, ये सब देखने के लिए कुछ नहीं रहता एडमोनिशन में. दिस इज वेरी सुपरफिशियल वन. सर अशोक सर क्लोज कर देंगे क्या? हाँ सर. थोड़ा काम पे जाना है. नहीं जरूर. मैं राज की बात नहीं खोलूंगा आज, लेकिन पवन छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है. ठीक है पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. Please don't mind. I need to attend some things. Okay. Thank you, sir. जी सर, थैंक यू सर. Okay. Sure. Thank you, sir.